Now, so at theta equal to 0 degree, the sigma x prime and tau x, so let me just list them down over here. Sigma x is minus 20 megapascal, sigma y is 90 megapascal, and tau xy is plus 60 megapascal. Now, at 0 degree, you know that these things will be equal to sigma x and tau x y. And as you keep on changing the angle, you will keep on getting different values for sigma x prime and tau x prime, y prime. Okay? So one of the graphs that you would have drawn would be like, for example, for sigma x prime and theta. If you keep on drawing this, you will initial at 0 degree you will be like at minus 20. If this is the negative 20, you will be over here, and then you keep on plotting the graphs until maybe different values, 180 degree, and then 181 degree, and so on. Maybe you can start up to 90 degree, and then you can go on up to 180 degree, and then you can just. So this is one way to look at it. I mean, so this graph is going to tell you the variation of sigma x prime with theta. Okay? Similarly, if you can draw a graph for tau x prime, y prime, and theta, that's one way of looking at this variation. Okay? For each different value of theta, you want to see the value for the normal stress or the shear stress. Now you understand that these different values of theta actually correspond, each value of theta is defining a certain plane. Okay? There is a plane whose outward normal is making an angle theta with x-axis, positive x-axis. Okay? So if we just try plotting sigma x prime and tau x prime y prime over here with sigma x prime on horizontal axis, right and positive, and shear stress tau x prime y prime on vertical axis, downward positive, then so each of these points, maybe, so what about this point, minus 20 and 60, where should I plot this? Which coordinate should I plot it? Sorry? Sigma x prime is negative, it means I've got to plot it this way, and this is, positive, so it means I'm taking this with positive, so it will be somewhere over here. Okay? So maybe I can show a little bit of a scale over here. Maybe this is 20, this is 40, and this is 60, and so on, 80, and this is 100. Similarly, on this side, I have minus 20, minus 40, minus 60, minus 80, and then minus 100. Similarly, for this side, I would say this is, let's say, 20, 40, 60, 80, and then 100. And then this side maybe minus 20, minus 40, minus 60, minus 80, and then minus 100. So this coordinate, minus 20 and 60 will be, minus 20 and 60 will be somewhere over here. Okay? And this is the coordinates of the reference plane. This is the reference plane. Okay? This plane, sigma x prime is minus 20, the normal stress is minus 20, and the shear stress is plus 60 as per our sign convention. Okay? So this is the point where this is the point which represents the state of stress on the reference plane. Let me call it, this is the reference plane. For the reference plane, the angle theta is 0 degree. Okay? The angle theta is 0. Now, this is one point on this graph. If you keep on plotting these points, you will end up with a circle. If you join those points, you will end up with a circle. We have made sure that we take same scale on both horizontal axis and vertical axis. If you make sure that they have same scale on horizontal and vertical axis, and you plot all these points, you have seen on your AutoCAD that
you will end up with a circle. That circle is called as Mohr's circle. Okay? So it means that any point, obviously किसको circle अच्छा draw करना आएगा this drawing? Anybody who can? I have got very bad drawing. ये ठीक है कोई अलियास अलियास हमेशा अपने बोर्ड पे आपको स्पेस पर भी आपको पूरी डायग्राम इकट्ठी बन जाए तो आपको पता नहीं लगता कैसे स्टार्ट हुई. So this was our point A. मैं इसको point A कह रहा हूँ जो कि ये वाला पॉइंट जो रेफरेंस प्लेन पे आपको नॉर्मल स्ट्रेस और shear स्ट्रेस बता रहा है. ठीक, तो ये जितने भी बाकी पॉइंट्स हैं ये सारे पॉइंट्स कैसे बने आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 डिग्री के ऊपर. क्या अगर आपकी मैथ का शीट खुली हुई है या अगर एक्सेल शीट है तो एक्सेल शीट में आप उसको अपने शीट को कॉपी करके ये अगर आपका डेटा एंट्री हो सकती है तो आप उसको एंट्री करके दिखाएंगे ताकि मैं आपको अपने एक्सेल शीट में इसको करके देखें. इससे अपने अगर आपकी ऑलरेडी बनी हुई तो उसी को कॉपी कर लें और डेटा चेंज कर लें. एक्सेल शीट में कर लें अगर आपको और एक्सेल शीट है आपके पास से. आप वन की -70 into 60. यस सर So -20. -20 और वो क्या है 90 और ये 60. Alright, so I want to see then -19.7 -19.8 और अगर मैं इसको कहूँ कि अगर कम तो आप बताइए ये टेक्स्ट में सर कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड दबा दें और सारा सिलेक्ट हो जाएगा. do that, but I just wanted to see this way. लेकिन वो चलो ठीक है यूज में देखिए करेंगे sigma x. I just want to hide this part because I want to see these two things simultaneously. ठीक है. So for alright, so this is a 0.1 degree. I want to go to 1 degree. -17.9 and 61.9. This is -17.9 and 61 point. How much? 61.9 gets it. यहाँ से देखिए 61.9. Okay. So where does this fall on the Excel sheet? Okay. 10 degree के लिए मुझे यहाँ से देख पा सकते हैं कि यहाँ से नहीं नजर आएगा. You gotta go to इसमें छोटा स्केल क्यों रखे तो 3.8 and 75.2. 3.8 and 75.2. Okay. So 3.8 and 75.2. This should be, somewhere 3.8 and 75.2 should be around over here. Okay. ये वाला जो पॉइंट है क्लियर समझ आ रही. So similarly all the points on the circle represent state of stress at certain plane. Getting it? This is the important point to understand.
any point on word circle is giving you state of stress at certain plane. Okay, उसका कोई ना कोई जो भी ओरिएंटेशन है बट उसके ऊपर वो आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस का मतलब है उसके ऊपर आपको नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स प्राइम और शियर स्ट्रेस टा एक्स प्राइम वाई प्राइम बता रहा है. ठीक है. सो अगर आप बुक के अंदर देखेंगे, बुक में इसको डिफरेंट वे में एक्सप्लेन किया गया है. आई वांट टू शो यू कि बुक में इस चीज को कैसे दिखाया गया. ये तो आपको समझ आ गया ना कि अगर इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे यू विल गेट अ सर्कल. ठीक है, ये सर्कल इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ बन जाता है. So they have done analytical in the book. They have done some analytical calculations. For example, we have seen that sigma x prime is given by this equation. Okay, tau x prime y prime is given by this equation. Both are function of theta, and both depend upon sigma x, sigma y, and tau x y. Getting it? So now the parameter, जैसे parametric equations आपने पढ़ी, जैसे x is a function of t, y is a function of t. Now, can you relate x and y together? This is exactly what we have done over here. Sigma x prime, a function of theta. Tau x prime y prime, again a function of parameter theta. So these are basically parametric equations in terms of theta. Now what we want is, we want to relate sigma x prime and tau x prime y prime. So how we do that? We eliminate from these two equations the angle theta. Okay, you can do that by the process they have shown over here. You can do it by eliminating, by squaring each equation and adding them together. Okay, you should be able to get this result by squaring each equation and then adding them together. You should be able to get this answer. Now we can just rewrite the same equation in a different way. As you can see over here, for example, this sigma x plus sigma y by 2 can be written as, this can be written as sigma, this can be given a name as sigma average. Okay, and similarly, and this term has been given the name of r square. Let me tell you why they are calling it the way they are calling it. Okay, do you know that the equation of a circle, if there is a circle and if you have xy coordinate system and you want to write the equation of a circle, now this has its center at the, कहाँ है इसका सेंटर? ओरिजिन के ऊपर. अगर सेंटर से अगर ओरिजिन से ऑफसेट है उसका सेंटर, तो फिर आपको ये जहाँ पे x नजर आ रहा है वहाँ पे सर्टेन पैरामीटर x के साथ जो भी आप लिखना चाहें, ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पर है? h के ऊपर. h में 0, h में 0 या h हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर h और y के ऊपर अगेन 0 के ऊपर. ठीक है. सो इसका अगर हमारी जो इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो हमारी इक्वेशन में यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है इसमें ये पैरामीटर माइनस दिस पैरामीटर होल स्क्वायर प्लस द अदर पैरामीटर जो tau x prime y prime है उसका स्क्वायर. सो यू कैन जस्ट रिलेट इट लाइक दिस कि ये इसकी जगह पे हमारे पास सिग्मा x प्राइम है, इसकी जगह पे tau x prime y प्राइम है. इसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन है ये एक सर्कल की इक्वेशन है जिसमें अगर हम x एक्सिस के ऊपर सिग्मा x प्राइम रखें और y एक्सिस के ऊपर tau x prime y प्राइम रखें तो ये एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी. सो और जिसका सेंटर कहाँ पर होगा? सेंटर ऑफ द सर्कल वुड बी ज़ाहिर है वो पॉइंट है ना, उसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे. उसका जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो ये x जो है ये हमारा सिग्मा एवरेज है, क्योंकि सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2, सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाई 2 उसका एक हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है. अगर मैं इसको ऐसे लिख सकूं c और पहला कोऑर्डिनेट ये होगा, दूसरा कोऑर्डिनेट 0. ठीक है, ऐसे में लिख सकते हैं. या जैसे कि आप लिखना चाहें c एक पॉइंट है जिसके दो कोऑर्डिनेट्स हैं, these are the two coordinates. इसको सिग्मा एवरेज कहा हुआ है. So instead of plotting them, instead of finding sigma x prime tau x prime for different values of theta and then plotting them,
we can actually draw them. ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आर स्क्वायर, यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है ये वाली, इसमें इस साइड पे कोई आपको स्क्वायर नहीं नजर आ रहा। सर्कल की इक्वेशन में तो स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर। यहाँ पर आपको क्या टर्म नजर आ रही है, ये वाली। इसका मतलब है इसका जो स्क्वायर रूट लेके फिर स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें आर की अपनी वैल्यू, ये जो आपको राइट साइड में नजर आ रहा है, इसका स्क्वायर रूट के बराबर है। Yes. I hope you're getting this point. Yes. So it means that the radius of the circle is sigma x minus sigma y by 2 whole square plus tan xy square under the root. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस टर्म। इस ये है इस, अब सर्कल का अगर आपको सेंटर पता चल जाए, उसका रेडियस पता चल जाए, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। पहले तो हमने प्लॉटिंग की बात की, तो उसको ड्रॉ कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट अभी भी वही रहेगा, जो सर्कल ड्रॉ करके बना दो, प्लॉट करके बना दो, उसके ऊपर जो भी पॉइंट लाई कर रहा है वो किसी न किसी प्लेन पे आपको क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा है। यानी वो किसी जाहिर उसके दो कोई भी पॉइंट बनेगा सर्कल के ऊपर, उसके दो ही कोऑर्डिनेट होंगे, ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो वो आपको किसी, अब ये क्वेश्चन रह गया। अब जब इससे बड़ा आसान, चलिए एक चीज पहले क्लियर कर दें, ये जो पॉइंट है ये रेफरेंस पॉइंट है। इस अगर आप इस तरफ से एक्सिस लें कि ये इस तरफ ये पॉजिटिव और ये इस तरफ पॉजिटिव लें, तो अगर हम ये जो इसका सेंटर बन रहा है सर्कल का, इसको मैं सी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस लाइन को मैं ज्वाइन करके सी, ये रेडियल लाइन मैंने ज्वाइन कर दी है। इस रेडियल लाइन से अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊं, ठीक, तो जितना ये एंगल होगा, फॉर एग्जांपल उस एंगल को, चलो मैं इसको कहता हूं, लेट्स से ये अगर मैं चला गया हूं 60 डिग्री यहां से, इस रेफरेंस में, इस सर्कल के ऊपर ओरिजिन से, सॉरी सेंटर से एक जो लाइन ज्वाइन कर रही थी वो 0 डिग्री रेफरेंस पे उस प्लेन पे बता रही थी, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स। अगर मैं इससे सर्टेन एंगल 60 डिग्री लेट से चला जाता हूं काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे पास ये वाला जो पॉइंट होगा, या आप इस तरह से चेक करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल, आप ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस एंगल वुड बी हाउ मच, ये आपको एंगल मिलेगा, ये 20 डिग्री होगा। अगर आप AutoCAD पे इसको करके देखें तो आपको मिलेगा ये 20 डिग्री है। ठीक, 20 डिग्री। जो पॉइंट जो यहां पर 10 डिग्री के ऊपर सिग्मा एक्स प्राइम का एक्स प्राइम वाई प्राइम के आंसर्स निकले थे कि एट थीटा इक्वल टू 10 डिग्री, वो आंसर्स, वो वाला, वो जो पॉइंट है, ये भी पॉइंट है ना जिसके ये दो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये वाला पॉइंट इस सर्कल में इस सी ए लाइन से 20 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज पे होगा। अगर आप ये देखना चाहें कि फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पे क्या आंसर, सॉरी यस 90 डिग्री पे क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसके, नहीं 90 डिग्री पे ये दो कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, -90 और -60। ये पॉइंट्स कहां पर है, यहाँ पे 90, ये देखो 90 और -60, इसका मतलब कहां पर हम ऊपर जाएंगे यहाँ से, सॉरी 90 आपको तो 900 आ रहा है, आप लोगों तो 900 फुट की होगा अपने डेटा में। ये इस पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी वैसे, पता नहीं अब आपको कंफ्यूज ना हो जाए। मैं इसी को यहाँ से देख रहा था कि मुझे ये यहाँ से कैंसर नजर आ रहा है कि इस प्लेन का आउटपुट नॉर्मल नहीं है ना, क्योंकि एंगल 90 डिग्री बना रहा है विद रेफरेंस। सो आई वाज लुकिंग एट दिस प्लेन कि ये तो +90 आनी है और इसका y प्राइम इधर है पॉजिटिव
एक्स प्राइम वाई प्राइम इस प्लेन का, तो ये अपने पॉजिटिव वाई प्राइम के अपोजिट जा रहा है, तो आई कुड रीड फ्रॉम हियर कि -60 आएगा, ठीक है। एनीवेज, सो दिस आंसर 90 एंड -60 would plot ये 90 और -60 would plot somewhere over here, right? I'm not sure कि हमने यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स प्लॉट किए शायद हमने छोटा स्केल कर दिया, क्योंकि ये अपने मैनुअली कर रहा हूँ, AutoCAD पे नहीं किया मैंने इसको, AutoCAD पे नहीं कर रहा हूँ, इसलिए I'm sure I'm making a lot of mistakes in terms of scale. So it would be somewhere over here. मैं धक्के से अगर इसको लेके जाऊं तो ये मैं कह रहा हूँ 60 है यार, ये मुर्गी बने ना, ये वाला पॉइंट वो कोऑर्डिनेट्स बता रहा है आपको, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ 100 है, ये 90 है मेरा, और ये 90 और ये -60, सॉरी -60, ये जो पॉइंट है यहाँ पर, एंड दिस पॉइंट इज रफली ओवर हियर। अब मैं इसमें धक्के से ही इसको मैच कर रहा हूँ, आपको डू इट ऑन आ तो खैर, लेकिन मेरे पास अपना सिस्टम नहीं था काम कर रहा। एनीवेज, सो दिस इज लाइन से ये ऐसे आना चाहिए, यहाँ पर जो पॉइंट, ठीक है, -60 और ये 90। So, अगर मैं इस जगह जो थीटा की डेफिनेशन है इस सारी डिस्कशन के अंदर, अगर मैं 90 डिग्री के ऊपर इन दो वैल्यूज को फाइंड करूं तो ये वैल्यूज यहां पर प्लॉट होगी, और ये जो लाइन है, दिस लाइन इज एट 180 डिग्री फ्रॉम दिस रेफरेंस लाइन CA, getting it? Yes, sir. और अगर आप यहाँ पर 180 डिग्री पे देखें तो 180 डिग्री के ऊपर आपको दोबारा से वही आंसर मिल जाएंगे, -20 and 60, -20 and 60। तो 180 डिग्री अगर आप वहां पर आप 180 डिग्री की एंगल की बात करें तो मोर सर्कल में आप 360 डिग्री के ऊपर वो अपार्ट होंगे, वो दो लाइंस, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इससे हमें ये समझ आ रही कि अब हम नेक्स्ट टाइम से प्लॉट नहीं करेंगे इसको, ये प्लॉटिंग नहीं करेंगे, ग्राफ प्लॉट नहीं करेंगे, अब हम ड्रॉ करेंगे। सिर्फ हमारा होगा हमारा उसी तरह से जैसे ग्राफ के लिए एक्सिस तैयार करते हैं आप, नहीं आप उसके ऊपर स्केल रखते हैं कि ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है, और इसके ऊपर मैं कोई चीज ड्रॉ कर रहा हूं, तो वो ड्रॉ आप खाली ड्रॉ नहीं करेंगे, यू विल हैव योर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, योर वर्टिकल एक्सिस, उनके ऊपर स्केल भी होगा, लेकिन अब प्लॉट नहीं करेंगे इस सर्कल को, इस सर्कल को के सेंटर को लोकेट करेंगे और इसका रेडियस फाइंड करके आप सर्कल प्लॉट कर ले करेंगे। सर्कल प्लॉट हो गया। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस सर्कल नाउ? इस स्मॉल सर्कल के अंदर ये जस्ट एक ग्राफिकल वे है कि हम ये सारा डेटा जो टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ तक 180 डिग्री तक, ये सारा डेटा मोर सर्कल, एक मोर सर्कल के अंदर ये सारे पॉइंट्स प्लॉट हो जाते हैं। Getting it? यानी ये जस्ट a graphical way है of variation of sigma x prime and tau x prime y prime as you keep on changing the angle। इसका मतलब है स्टेप्स क्या होंगे? एक्सिस लिया आपने, ये एक्सिस लिया, स्केल शो कर दिया, ठीक। उसके बाद सेंटर ऑफ द सर्कल को लोकेट किया, उसके कोऑर्डिनेट्स को, हॉरिजॉन्टल वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा, दूसरा 0, सर्कल लोकेट हो गया। उसके बाद आपने रेडियस अगेन कैलकुलेट कर लेना, क्योंकि आपको अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं तो हमें क्या चीज चाहिए? सेंटर एंड रेडियस। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने और रेडियस की वैल्यू कितनी है, तो वो उतना फिर आपने सर्कल लगा देना है। उस सर्कल के बन जाने के बाद आपको ये लोकेट करना पड़ेगा कि इस पूरे सर्कल में वो वाला पॉइंट कहां पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स ये वाले हैं।
इस प्लेन वाले जो इस प्लेन पे मुझे स्टेटस स्ट्रेस बता रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी तो आप प्लॉट तो नहीं कर रहे ना, अभी तो आपने बस सर्कल लगा दिया। फिर भी मैं नॉर्मली जब हमने ग्राफ शीट पे काम करना हो तो फिर हम आल्दो हमें सिर्फ सेंटर लोकेट करके बस रेडियस हमें पता है तो हम कैंपस उतना खोल के ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा बेस्ट वे वुड बी कि आप सेंटर को भी लोकेट करें और ए पॉइंट को भी अपने ग्राफ में लोकेट करें, ठीक है। और आपको अपना रेडियस वैसे भी पता होगा, लेकिन आप सी को लोकेट कर दें, ए को लोकेट कर दें, तो आप अपना सर्कल घुमा दें बस, सो आपको इससे दो चीजें हो जाएंगी। आपने सिर्फ सेंटर लोकेट किया, ए पॉइंट को लोकेट किया, आर को ना भी कैलकुलेट करके रख लें, ठीक है, जस्ट फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। लेकिन प्लॉट करने के लिए बेहतर है कि सी को लोकेट करें, ए को लोकेट करें और सर्कल शो कर दें, गेटिंग इट। अब उससे क्या फायदा होगा आपको, और पहले से पता होगा कि ये दिस इज माय रेफरेंस पॉइंट, ए पॉइंट पहले से आपको पता होगा। अगर बाद में भी आपको लोकेट करना ही है ना सर्कल में, अच्छा मेरा ए पॉइंट कहां पर बन रहा है, ठीक है। सो ए पॉइंट लोकेट हो गया, सर्कल बन चुका है। अब आपको जो चीज समझनी है, नीड यू हैव अटेंशन ऑन दिस पॉइंट। इधर देखना यार, हमजा क्या नाम, अली हमजा, अली हमजा, यहाँ देखो। इसके बाद अब मैं सारा डेटा यहां से ले सकता हूं। कौन कौन सा डेटा? सबसे बड़ी वैल्यू, बड़ी वैल्यू से मुराद है सिग्मा एक्स प्राइम की सबसे बड़ी और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ में खुद ही नजर आ जाएगी, गेटिंग इट। ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये सबसे छोटी वैल्यू है, और इन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और इसी तरह shear की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी हमें नजर आ रही है। जाहिर सी बात है मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम होगी, जितना सर्कल ऊपर किया उतनी इसका रीचिंग रेडियस होगा, बट जस्ट इफ यू वांट टू सी दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव इस तरफ प्लॉट किया, पॉजिटिव वाली साइड पे ये हम कहेंगे कि ये मैक्सिमम है, ठीक। अदरवाइज वैल्यू इसकी भी उतनी ही है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन वो नेगेटिव वाली साइड है, ठीक है। सो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, हर पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स के साथ में रीड करना है, उसका सेंटर से डिस्टेंस उस तरह से नहीं देखना, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर ये जो पॉइंट है, दिस इज टेलिंग यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द, ये उस प्लेन का स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जिसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस, सॉरी शियर स्ट्रेस इज एट मैक्सिमम एंड नॉर्मल स्ट्रेस इज एट एवरेज। वही सेंटर से नीचे वर्टिकल डाउन में आया हो ना, तो जो इसकी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स वही इसके कोऑर्डिनेट के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? एवरेज एंड 0, ठीक है। सो ये जो पॉइंट्स हैं जो कि हमें कैलकुलेशन, इसको हम ना समटाइम्स जो बुक में भी ऐसे ही हुआ है, जब हमें भी जब पढ़ाया गया था, तो एक हम मिस्टेक, मैं इसको मिस्टेक कहता हूँ, अगर आप दो ये कोई नई चीज नहीं है, वही इक्वेशन से जो डेटा निकलना था वो डेटा यहाँ पे ग्राफिकली प्लॉट हुआ है, यानी कि अब मैं इसलिए मैं कहूँ कि ये प्रॉब्लम है, इसके मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज चाहिए और प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन चाहिए। इस एलिमेंट के ऊपर आप प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू फाइंड करें और फिर आप वो एलिमेंट शो करें जिसके ऊपर, जिसके साइडों के ऊपर वो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हो, ठीक। अगर मैं आपसे ये प्रॉब्लम पूछूं, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है? इक्वेशंस, tan 2 थीटा p इक्वेशन लिखी, वहां से थीटा p के दो रूट्स आया, आपने कहा इनको एक एक करके पुट करूंगा सिग्मा x प्राइम में, मेरे पास पता चल जाएगा कि सिग्मा मैक्स कितना है, सिग्मा मिन कितना है, और हमें पता चल जाएगा सिग्मा मैक्स का एंगल कौन सा है, किस एंगल पे सिग्मा मैक्स आंसर आ रहा है, किस एंगल पे सिग्मा मिन आंसर आ रहा है। दिस इज एनालिटिकल वे ऑफ डूइंग इट यूजिंग इक्वेशंस। अब जब मैं आपसे कहूंगा कि आई वांट यू टू गिव मी द आंसर इन अ ग्राफिकल वे यूजिंग मोर सर्कल, अब मैं आपको इक्वेशंस का नहीं कहूंगा, अब आपको मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं बताने की जरूरत, आपको कि एग्जैक्ट आंसर ये आ रहे हैं और ये, अब आप सिंपली मुझे ग्राफ दिखाएं और पॉइंट मार्क करें कि ये जो पॉइंट है मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बता रहे हैं, मेजर प्रिंसिपल प्लेन वाला पॉइंट है और ये माइनर प्रिंसिपल प्लेन वाला पॉइंट, दैट्स इट। ये पॉइंट मेरा shear stress वाला, maximum shear stress वाला पॉइंट है और ये minimum shear stress वाला पॉइंट है, and that's it, in plane maximum shear stress है, in plane minimum shear stress, ठीक है। So अगर मैं आपसे कहूँ मुझे ग्राफ में दिखाएं भी वो पॉइंट्स और उनकी कोऑर्डिनेट्स भी लेबल कर रहे हैं, इसका मतलब अब आपको इक्वेशंस भी यूज करके उन कोऑर्डिनेट्स को लेबल भी करना पड़ेगा, यानी एक तो ये ना मैं कहूँ आप मुझे मार्क कर, अगर मैं आपके साथ खड़ा हूँ, जैसे मैं आपके असेसमेंट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा, मुझे कहें, मैं आपसे कहूँ वेयर इज द पॉइंट
रिप्रेजेंटिंग मेजर प्रिंसिपल प्लेन, आप जो फिगर रखेंगे ये दिस इज द पॉइंट। अब आप पेपर आप कर रहे हैं तो साथ तो नहीं खड़ा हो ना, तो आप मुझे कुछ मार्क करेंगे, आपको मैं उसको पता चलेगा अच्छा ये वाला पॉइंट है जो आपका मेजर प्रिंसिपल प्लेन बता रहा था, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूँ मुझे लेबल भी कर दें, लेबल करने से मुराद है इस पॉइंट तक बताएं कि ये कितना, इसका ये कोऑर्डिनेट कितना है, सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर कितनी है, इसका मतलब है मैं ये डिस्टेंस पूछ रहा हूँ आपसे, ओरिजिन है ना ये, यहाँ से मैं डिस्टेंस आपसे पूछ रहा हूँ। अब ये डिस्टेंस ग्राफ में करना चाहे जबरदस्ती कि ये कहां पर है, आप कह सकते हैं कि अच्छा दिस इज डिस्टेंस इज सिग्मा एवरेज, और आगे ये डिस्टेंस कितना है सेंटर से लेके यहां तक, सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस के बराबर। तो आप कह सकते हैं सिग्मा एवरेज प्लस आर या सी प्लस आर, स्मॉल सी के रूप में सेंटर के इस कोऑर्डिनेट के लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इस पर ये तो मेरा आपको खुद ही इक्वेशन से भी पता चल रहा होगा, सिग्मा मैक्स या मेन वाली जो इक्वेशन थी उसमें भी हमने देख ली था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस प्लस फॉर मैक्स माइनस फॉर मिन, ठीक है। ये आपको वहां भी नजर आ गया। और अगर इधर का इधर की मैं बात करूं तो ये इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ये कोऑर्डिनेट्स ये इक्वल होंगे, दिस वैल्यू इज सिग्मा एवरेज एंड दिस वैल्यू इज आर, सो सिग्मा एवरेज माइनस आर, ठीक है। अगर आप मैथमेटिकली कर रहे हैं इसको, वैसे तो आपको पता चल रहा है कि इस डिस्टेंस में से ये निकलेगा तो ये डिस्टेंस बनेगा, टोटल रेडियस से इसमें से ये निकल जाए तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, ठीक। ऑफ कोर्स नेगेटिव वाली साइड पे साइन नेगेटिव साइन आएगा, वो वैसे वो बेस्ट आप एनालिटिकली समझ जाएंगे इक्वेशन से। इक्वेशन क्या है कि सिग्मा मैक्स प्लस साइन के साथ आ जाएगा, माइनस के लिए माइनस साइन से, सिग्मा एवरेज माइनस आर, ठीक है। गेटिंग इट? सो आई वांट यू टू बी वेरी क्लियर कि जब आप लोग को ग्राफिकली प्लॉट करते तो इसका मतलब है अच्छा बुक में क्या हुआ है, बुक में वो ऐसे कर रहा है, आई जस्ट डोंट लाइक कि मैं आपसे बता रहा हूं कि लेट्स से मैं कहता हूं इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, तो वो क्या कर रहा है, वो कहते हैं अच्छा हम एंगल देख लेते हैं ये कितना है, फिर ये देख लेते हैं कितना है, फिर ये फाइंड कर लेते हैं। आई डोंट लाइक दैट मेथड, ठीक है। फिर हम ये फाइंड करेंगे और ये अगर आपने फिर इक्वेशनल एंगल यहाँ पर ढूंढ ढांड के फिर आपने वो कर रहे हैं तो फिर एनालिटिकली कर लो ना, उससे अच्छा है उसके कोऑर्डिनेट्स ही चाहिए ना, उसके मतलब आई डोंट सी एनी पॉइंट इन डूइंग दैट। आपको ये पता है कि ये 180 डिग्री है तो आप 90 वहां पुट करके सिग्मा एक्स प्राइम वाली इक्वेशन में ये इस तरह से निकाल दो ना, लेकिन अब मिक्स नहीं करना है इसको, मैं ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री से नहीं फर्दर इसको वर्कआउट करने की कोशिश करें जैसे किताब में हुआ है, ठीक है। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो फिर इक्वेशन तैयार है ना, वहां से निकाल दो, किसी भी एंगल के पुट कर दो सिग्मा एक्स प्राइम के इक्वेशन में, उस एंगल के ऊपर की आ जाएगा ना कि सिग्मा एक्स प्राइम कितना है, टा एक्स प्राइम वाई प्राइम की इक्वेशन अवेलेबल है, फिर पुट करो आंसर आ जाएगा। सो मोर सर्कल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको ये पता हो कि हर पॉइंट बता क्या रहा है, और अगर उसमें स्पेशल जो पॉइंट्स हैं जो मेजर प्रिंसिपल प्लेन, माइनर प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम और मिनिमम वाले जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं आपसे कहूं इसमें 2 थीटा p1 की वैल्यू कितनी होगी, 2 थीटा p1, तो आपको पता है कौन सा एंगल 2 थीटा p1 होगा, p1 में कह रहा हूं थीटा p1 में इसको कह रहा हूं एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन को, एंगल ऑफ सिग्मा मैक्स वाला जो प्लेन है मेजर प्रिंसिपल प्लेन, इसमें थोड़ा ये फायदा है कि हर चीज एक ही दफा में नजर आ जाती है। 2 थीटा p1 आप इसमें लेबल कर सकते हैं, 2 थीटा p1 कौन सा एंगल होगा, यहां से ये हमारा रेफरेंस एक्सिस है ना, यहां से अगर मैं अच्छा दो तरीके होंगे इसमें, दो तरह की सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन क्या होगी, मैं कहूं यहां से मैं सर्टेन एंगल जाऊं और मैं आपसे कहूं यहां के कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, इसका मतलब ये है कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि एट सर्टेन, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं ना कि अगर थीटा की ये वैल्यू हो तो सिग्मा एक्स प्राइम वाई इनकी क्या वैल्यूज होंगी, एक गिवन वैल्यू ऑफ थीटा आपको दूं और मैं आपसे कहूं कि इनकी क्या वैल्यूज होंगी फॉर गिव दैट वैल्यू ऑफ थीटा, एक ये वे है ना पूछने का। दूसरा वे क्या है कि मैं आपसे कहूं कि किसी कोई ना कोई एंगल है जिसके पुट करने से ये दो आंसर्स आ रहे हैं, मैं आपको वो आंसर दे दूं, ये वाला आंसर भी दे दूं, ये वाला आंसर भी दे दूं,
और मैं आपसे पूछूं वो कौन सा एंगल होगा जिस पे ये आंसर्स आएंगे, ठीक? तो वो आपको मैं करूँ ये पॉइंट, मैंने आपको पॉइंट बता दी, इसका मतलब है मैंने आपको ये दो वैल्यूज की बात कर ली कि ये दो वैल्यूज इसके नोन है ना हमें इस पॉइंट के, ये पॉइंट इसका एंगल कितना है फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। रेफरेंस प्लेन ये था ना, हर प्लेन का सर्टेन एंगल है, हर पॉइंट वो है उस सर्टेन प्लेन के स्टेट स्ट्रेस बता रहे हैं, और हर प्लेन का सर्टेन एंगल है विद रेफरेंस प्लेन, जिसको हम थीटा मानते हैं। तो मैं कह रहा हूं इस पॉइंट का एंगल अगर हम मोर सर्कल में देखें तो ये एंगल कितना होगा। अगर आपको लाइन ज्यादा लग रही है तो मैं बीच में से मिटा देता हूं बाकियों को, मैंने पहले लिखाई थी, बताएं कितना होगा इस एंगल का नाम पहले भी पूछ रहा हूं, क्या नाम देंगे आप? थीटा p1 2 थीटा p1 इसी को कहेंगे ना। ये CA था, रेफरेंस प्लेन को A पॉइंट रेफरेंस प्लेन के कोऑर्डिनेट्स हैं। यहां से अगर मैं, मुझे पता ही नहीं मेजर प्रिंसिपल प्लेन वाला पॉइंट है, तो अगर मैं यहां से इस प्लेन तक आ जाऊंगा, CA से इस प्लेन तक आ जाऊंगा, इस पॉइंट तक रेडियल लाइन तक, तो ये मुझे 2 थीटा p1 देगा। ये p1 में कह रहा हूं जो मैक्सिमम सिग्मा मैक्स वाला जो प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन का जो एंगल बनेगा, ठीक है। और ये जो प्लेन है इसका एंगल विद दिस रेफरेंस लाइन कितना होगा, क्या नाम रखना चाहिए उसका? 2 थीटा, क्या होना चाहिए नाम? ये पॉइंट, ये जैसे ये पॉइंट प्लेन के स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा था, उस प्लेन का नाम मेजर प्रिंसिपल प्लेन था। ये भी किसी प्लेन के ऊपर स्टेट ऑफ स्ट्रेस बता रहा है, उस प्लेन का नाम क्या है? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब इस पॉइंट का एंगल, ये जो रेडियल लाइन बनेगी सी, और इस लाइन का एंगल विद दिस क्या होना चाहिए? 2 थीटा p2, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह जाएंगे पॉजिटिव और बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी से बनाते कि ये सारा घुमा के आप आ रहे हैं, और अगर आप इधर से जाना चाहें तो उसका मतलब ये आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो जो भी वैल्यू होगी थीटा की माइनस साइन के साथ, ठीक है। सो मोर सर्कल में कोई खास कोई ऐसी कोई नई चीज नहीं आती, लेकिन आपको अगर क्विकली मोर सर्कल ड्रॉ करना हो उसकी एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, और अगर आपके सामने मोर सर्कल ड्रॉ हुआ हो तो उससे आपको रिजल्ट लेना आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि 2 थीटा s का एंगल कौन सा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल 2 थीटा s का है? वर्टिकल लाइन के साथ ये वाली जो लाइन है इसका एंगल दिस इज 2 थीटा s, क्योंकि ये पॉइंट किस प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस प्लेन पे मैक्सिमम इंक्लाइन shear स्ट्रेस है। Getting it? So next time से what most, बल्कि फ्यूचर में जितनी कैलकुलेशंस होंगी उसमें हम सिर्फ मोर सर्कल बस ड्रॉ कर ले रहे हैं, वहीं से हमारा डाटा नजर आ रहा है। Did you get my point? Yes, sir. Next time say what we need to do is कि अगर ये आपको ये गिवन हो तो इसका सर्कल ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। ये गिवन है तो उसका सर्कल आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये अगर सर्कल ड्रॉ हुआ हो तो आपको उसमें से पढ़ना आना चाहिए कि मेजर प्रिंसिपल प्लेन कितना है, सिग्मा मैक्स कितना है, सिग्मा मिन कितना है, टाउ मैक्स कितना है, टाउ मिन कितना है, और इनके एंगल्स कितने हैं, ठीक है। सो लेट मी शो यू व्हाट दिस बुक गाय इज डूइंग। ये ऑथर यहाँ पे क्या कर रहा है? लाइट आ गई, लाइट आ गई या नहीं आई? आ गई। मोड क्या करना पड़ेगा? ऑन करना पड़ेगा इसको। का सर्कल ड्रॉ करना है, मॉड सर्कल, एग्जांपल 9.7 के।
AutoCAD में सर्कल ड्रॉ करना तो आपको आता होगा, करें। उसमें आपको सेंटर की कोऑर्डिनेट अगर आप चाहें तो यही से आपको मेरा ख्याल है पता ही है कैसे कैलकुलेशन हो रही है। तो यू कैन सी ओवर हियर, सॉरी क्लॉकवाइज हम गए, इसका मतलब मैं कहूँगा -67.5 डिग्री, यानी हम ये कह रहे हैं कि वन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन्स इज एट -67.5 डिग्री। और आपकी जो कैलकुलेशंस आई हैं उसके अंदर आपने ये जो एंगल है अच्छा अगर इसका डबल लें कितना बनेगा 225 डिग्री। 225 डिग्री कहां पर है, अगर आप यहां से ऐसे जाएं, ठीक, तो फिर ये 225 डिग्री होगा। टोटल 360 है ना, 360 में से 135 निकाल तो कितना बनेगा 225 बनेगा ना। सो दिस एंगल इज 225 डिग्री, ठीक है। और ये 2 मैंने आपको ये कहा ना 2 थीटा P1 में उसको उस वक्त क्या रहा था मेजर प्रिंसिपल प्लेन वाले एंगल को, यानी इसको मैं थी आपने मोर सर्कल जो ड्रॉ किया था इस वाले को मैं थी P1 यानी जिस पे मैक्स आता है, सिग्मा मैक्स जिस पे आता है वो वाला थीटा P, ठीक है। अगर आप ये लिखना चाहें या ये भी लिख सकते हैं थीटा P फर्दर या कॉमा डाल के मैक्स लिख लें या जो भी लिखना चाहें ताकि पता चले कि ये कौन सा थीटा P है, ठीक है। सो आई होप कि इसमें कोई आपको मसला नहीं होना चाहिए कि मैथ कैड पे आपने कैसे ये रिजल्ट्स लेने और AutoCAD पे को ग्राफिकली प्लॉट कैसे करना है, ठीक है। सर्कल AutoCAD में जल्दी बन जाता है, टाइम आपको थोड़ा सा लगना है लेबल करने में कि ये C पॉइंट था, ये मेरा P सिग्मा मैक्स वाला पॉइंट की तरफ इतना एंगल है और वहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू इतनी है, उसमें थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, प्लॉट करने में टाइम नहीं लगेगा। 67.5 कौन सा -67.5 ये क्या चीज है? हाँ ये अगर आपके पास जो tan 2 थीटा p का क्या एंगल निकला था, आंसर क्या निकला था जब आपने किया था, सॉरी 2 थीटा p का जब आपने किया फिर आपको एक्सेल अपने मैथ के शीट में थीटा p का क्या आंसर दिया? 22.5 डिग्री। आपको मैथ कैड ने कहा दिस इज 22.5 डिग्री, ठीक। दूसरा आप कैसे अटेन कर सकते हैं, या आप इसमें 90 ऐड कर दें जो कि 112.5 आपने किया हुआ है, या आप इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 90 डिग्री, तो आंसर क्या बनेगा? 67.5। ये भी ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट, ठीक है। अगर आप क्लॉक, लेकिन अब हम माइनस वाली साइड पे चलेंगे, यानी हमने, और आप मुझे इसका डबल बताओ ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब क्या है, ये 45 डिग्री का एंगल है, इस CA वाली लाइन से इस एक्सिस तक दिस एंगल, और ये काउंटर क्लॉकवाइज जा रही है, देखो रेफरेंस प्लेन से काउंटर क्लॉकवाइज पॉजिटिव वाली साइड पे 45 डिग्री, और इसका मतलब ये डबल ऑफ द एंगल, इस एंगल का डबल है जिस पे मिनिमम आंसर आ रहा है सिग्मा का, यानी चीजें वहीं पे जो आंसर आपको मैथ कैड से आए वही चीजें आपको AutoCAD जब नजर वही चीजें आएंगी, वैल्यूज को यानी इसमें कोई नया कैलकुलेट नहीं हो रहा, वही चीजें के वही आंसर्स निकल रहे हैं, वही पैरामीटर्स सारे आ रहे हैं, जस्ट ग्राफिकली हमने प्लॉट किया हुआ है उसको, उन सारे पॉइंट्स को। फाइनली चाहे आप ये आंसर्स एनालिटिकल दीज आर बेस्ट ऑब्टेन्ड एनालिटिकल, अगर आप किसी एक सिर्फ प्रिंसिपल प्लेन की वैल्यूज आपको चाहिए और ये करना होगा, आप बेस्ट वे इसके आप एनालिटिकली इजीएस्ट है एनालिटिकली, जैसे हमने मैथ कैड के ऊपर किया हुआ है। मोर सर्कल का ये फायदा है कि अगर कहीं बना हुआ है मोर सर्कल तो आपको जल्दी समझ आ जाती है, अच्छा ये पॉइंट या वो मेजर प्रिंसिपल प्लेन वाला, ये माइनर वाला, इसका इतना एंगल, सो ऑन। माय पॉइंट राइट नाउ, माय फोकस इज अगर ये आंसर्स आपके पास हैं, हाउ आर यू गोइंग टू शो देम ऑन एन एलिमेंट, ठीक है। आई नीड योर हार्ड अटेंशन ऑन दिस पॉइंट। एलिमेंट जब भी हम ड्रॉ करेंगे उसमें दो एडजेसेंट प्लेन्स होंगे, ठीक है, दो एडजेसेंट प्लेन्स होंगे ना, डब्बा सा बनेगा, उसमें दो तो आपस में पैरेलल होंगे, तो इस तरह से कोई ना कोई डब्बा बनना है ना, जो भी कुछ अभी मैं सही नहीं ड्रॉ किया वैसे बात कर रहा हूँ, एक ये प्लेन और एक ये प्लेन, या आप कह लेंगे प्लेन और ये प्लेन, ठीक है, करेंगे। सो बेसिकली
आपने यहाँ से कैलकुलेशन को आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, अपनी ड्राइंग को यहाँ से स्टार्ट करना है। प्लीज माइंड द स्टेप्स, कैसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई सी, बेहतर ये रहता है कि जो छोटा एंगल हो वो पहले वहां से आप स्टार्ट करें। आप स्टार्ट कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन छोटे एंगल को कंसीव करना थोड़ा आसान होता है, ठीक। तो दिस इज 22.5 डिग्री, और मैं इस एंगल, अब ये एक प्लेन है जिसका नॉर्मल, आई नीड टू अटेंड हाइट एंड थीटा। थीटा क्या था? थीटा वाज द एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही था। किसी भी, जैसे आपने डेरिवेशन की थी ये वाली, इस डेरिवेशन के अंदर जब आपने एंगल लिया था, ये एक्स प्राइम था इस प्लेन का, और थीटा क्या था? हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एक्स प्राइम की तरफ आप आए तो ये थीटा था। Yes. अब हमें प्लेन नहीं पता कि प्लेन कौन सा है, हम उसका एक्स प्राइम का एंगल उसका पता है। इसका मतलब है हाउ शुड वी स्टार्ट? पहले वो ये एंगल आपने दिखाना है बिटवीन एक्स एक्सिस एंड एक्स प्राइम। इसका मतलब है पहले मैं क्या ड्रॉ करूं, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। नेक्स्ट वो एक्स प्राइम बनाना है जिसका एंगल 22.5 डिग्री हो विद एक्स एक्सिस। आप बताएं क्या क्या ड्रॉ करना चाहिए, कहां पे? ये है ना 20, ये मेरा रेफरेंस है, इससे मैं 22.5 काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि पॉजिटिव है ना, काउंटर क्लॉकवाइज जाऊंगा। समझ आ गई ये बात? यहां तक ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी है, चलो ज्यादा बड़ा हो गया एंगल। ये देखिए एक्स प्राइम, ये एंगल 22.5 डिग्री है। अभी प्लेन की बात नहीं हुई, अभी क्या है, ये एक्स प्राइम क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन। जो प्लेन अभी शो कर रहे हैं उसका नॉर्मल टू द प्लेन ड्रॉ हो गया। अब प्लेन कहां होगा? अगर नॉर्मल टू द प्लेन आपको पता है तो प्लेन ये होगा ना फिर। दिस इज द प्लेन, ये नॉर्मल है ना इस प्लेन पे। प्लेन पता हो तो आप नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, नॉर्मल पता हो तो आप प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. ये वो प्लेन है जिस पे ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है। तो अब आप कैसे शो करेंगे इसको? ऐसे ही शो करेंगे ना, माइनस है ना, कंप्रेसिव है 14.4 KSI। क्लियर? व्हाट नेक्स्ट? अब वैसे बाय द वे अब आगे खुद ही बन जाएगा। एक प्लेन को कर दोगे तो आप डब्बा बनाना रह गया, लेकिन आपको ये पता हो कि आपके डब्बे में कौन सा प्लेन आपने अभी बनाया है। ठीक है? अब मतलब अगर आपको ये बात समझ आ रही है, मुझे ये समझ आ रही है कि अब मेरा डब्बा ये बनने लगे। अगर एक प्लेन मैंने सही दिखा दिया तो अगला खुद ही सही बनेगा। लेकिन मैं आपको फिर भी समझाने के लिए कह रहा हूं, अगर आप वहां से स्टार्ट कर रहे होते इधर से, तो आप 112.5 डिग्री आपने एंगल दिखाना था बिटवीन दिस वाज योर एक्स प्राइम और ये आपका, सॉरी दिस वाज द एक्स एक्सिस और ये उस प्लेन का एक्स प्राइम है जिसका एंगल, सॉरी ये 112 डिग्री है जिसका एंगल। अब इसका प्लेन क्या बनता है? ये वाला। उसी प्लेन को मैं यहां पे दिखा रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं, मुझे पहले पता, अब पता नहीं आपको ये बात समझ आई कि नहीं, ये मुझे पहले पता चल गया था कि ये बनने लगा डब्बा। अब आप ये अगर डब्बा बना देंगे ना, वो गलत है, गलत भी बताऊंगा तो आपको समझ आएगी ना कि ये नहीं बनाना। अगर आप डब्बा ये समझ लेंगे तो आपका प्लेन ये है और आउटपुट नॉर्मल ये होना था। ये गलत हो गया क्योंकि आपका आउटपुट नॉर्मल तो ये था, ये वो प्लेन है जिसका आउटपुट नॉर्मल ये हो। इसका मतलब ये कि अब ये अगर इस तरह से मैं डब्बा बना दूंगा तो आउटपुट मैंने गलत ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये ऐसे कंप्लीट करूंगा इसको। दिस इज द प्लेन जिसका ये एक्स प्राइम और ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाला जो कि 112.5 डिग्री एंगल बना है। ये वो प्लेन है जिसके ऊपर ये स्ट्रेस एक्ट कर रहा है, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस 2.48 KSI पॉजिटिव। सो दिस इज 2.48 KSI। शियर स्ट्रेसेस कितने हैं इनके ऊपर, इस प्लेन पे और उस प्लेन पे? अगर आपको बिल्कुल ही कुछ ना समझ आए तो फिर आप फार्मूले में जाके, स्टैक्स में माइक्रोन वाले फार्मूले में जाके ये एंगल पुट करें, यहाँ वाला शेयर स्ट्रेस का आंसर आ जाएगा। अगर आपको कुछ भूल ही गया, वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। ये प्लेन, इस प्लेन का क्या नाम है? व्हाट आर दीस प्लेन्स?
Principal planes. So principal planes पे we have discussed that the normal stresses are either maximum or minimum, but shear stresses are zero. इसीलिए तो हमने कैलकुलेट भी नहीं की ना, because we know that those are going to be zero. अगर हम कैलकुलेट कर भी लेंगे so what, आंसर जीरो आ जाएगा. हो सकता है राउंडिंग ऑफ टू से बहुत छोटा सा आंसर क्लोज टू जीरो प्लस से माइनस की तरफ आ जाए, 10 raised by -6, -5 इस तरह का नंबर, but that actually means something is rounding off to ऐसे आ गया वो. Can you get? So that's it. We have done. We have shown the answer. अब कंप्लीट कर दे बस. अगर ये 14.4 ऐसे कंप्रेसर है तो this should be 14. बस अब तो एरर ड्रॉ करने लगे ना. This is the answer. अगर आपको ये एलिमेंट गिवन था, आपने ये एलिमेंट बना दिया, you have given complete answer. आपने बस यहाँ लिख लेना है एलिमेंट representing principal stresses. ये जाने आपको ये कैलकुलेशन अपने होमवर्क के लिए, इंटरनल वर्क के लिए चाहिए थी. ये आपका आई विल बी लुकिंग फॉर दिस थिंग, चाहे आप मैथ कैट से करें चाहे आप AutoCAD से करें. आई नीड दिस आंसर. ये ग्राफिकल आंसर आपने नहीं दिया ना, प्लीज कैरी नो मीनिंग. मुझे क्या, मैं सोचूंगा इसको, मुझे तो नहीं समझ आएगी ना. कैरी और AutoCAD के ऊपर ये फायदा है कि एलिमेंट भी AutoCAD आपको दे रहा होता है, लेकिन आपको कंसीव करना बड़ा इजी हो जाता है कि अच्छा दिस वाज अ रेफरेंस प्लेन एंड वी गो 1 और 2 डिग्री पॉइंट है, जितना भी एंगल है 22.5 और दूसरा एंगल. सो आई वांट यू टू नो अच्छा 9.7 को देखो वो बुक में वो कैसे कर रहा है. सिग्मा एवरेज निकाल लिया, आर निकाल लिया, ये आपने भी किया. प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए वो ये कर रहा है. आई डोंट लाइक इट. इफ यू वांट टू डू इट मैथ, आई मीन अगर आप ग्राफिकली कर रहे हैं तो फिर ग्राफिकली पूरा ग्राफिकली करें ना. फिर आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स AutoCAD से खुद रीड करें ना. फिर आप या ग्राफिकली कर मिक्स क्यों कर रहे हैं ना. अब वो कैलकुलेशन भी कर रहा है, यही कैलकुलेशन एनालिटिकली भी उसने करनी थी. 8.49 -6 यानी सिग्मा एवरेज -6 करके -6 8.49 उसका रेडियस है, -6 कर दिया और फिर सिग्मा 2 और वो पॉइंट्स दिखा रहे हैं ये यहाँ पे वो ट्रिग्नोमेट्री करके tan इनवर्स ऑफ ये वो ठीक. अगेन वो कैलकुलेशन लेके आ गया. अगर कैलकुलेशन ही करनी है तो फिर आप वही फार्मूले पहले बने हुए उन्हीं से कैलकुलेट कर लो. फिर दोबारा से यहीं पे दोबारा ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं. जैसे कि उसे ट्रायंगल बनाई हुई कि जी इस ट्रायंगल से आ रही है. अगर आपने इसी तरह से करना है तो फिर आप इक्वेशन करें ना, वो पहले से फार्मूला बना हुआ है. अगर आप उससे कर, अब उसका मसला क्या है, उसने किताब लिखनी है जो कि ऑनेस्ट बात है. किताब लिखने में आपको AutoCAD में मैं कहूँ कि किताब के अंदर से AutoCAD नजर आ रहा है कि इतना एंगल है, कि इतना हो गया, इतना पॉसिबल. तो बुक में उसकी मजबूरी भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लेकिन जब आप ग्राफिकली कर रहे हैं शुड एवरीथिंग शुड डू इट ऑल ग्राफिकली. अगेन यहाँ पर भी वो अब आप जितना भी स्क्रॉल करते जाएं प्रॉब्लम आपको एक समझ आ गया तो देयर इज नो. ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस भी कर लिया ना, ये जो आपने अली हसन ने एंगल और वो उसने वलीद ने ड्रॉ कर लिया था सर्कल. ठीक है, you can just keep on scrolling and I see nothing new in these problems. Abdullah, have you done these problems? कर लिए? और वो क्या कहेगा? Solve problem 9-2 using Mohr circle. ठीक है? So मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप करके ले आए, but I want you to know कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ये डेटा है, ये एलिमेंट है, इसका मोर सर्कल ड्रॉ कर दे जिससे सारी जो सिचुएशन है वो नजर आए. ठीक है, मैंने आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का बताना है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम. अच्छा